ایک بات یاد رکھنا، ڈرنا نہیں، طوفانوں سے نہیں ڈرا جاتا۔ تمہارے پاس رسول پاک کی محبت ہے، سب سے بڑی دولت۔ دین کے غلام ہونے پر فخر بھی کرو، کیا بات ہے، اپنے آپ کی آئیڈینٹیٹی اور اپنی شناخت چھپا کر کے دنیا کو راضی کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے 40 سال کسی کی غلامی میں لگا دیا، آج ان کو ان کی پارٹیوں نے کونے میں بٹھا دیا ہے۔ یہ دنیا کی عزت ہے۔ دنیا داروں کی جوتیوں میں جنہوں نے عزت ڈھونڈی، اپنی زندگیاں ان کے ساتھ لگا دیا، جے 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 کرتے کرتے تو تھک گئے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ان کو ان کے جوانوں نے بوڑھا سمجھ کر کے اب کنارے بٹھا دیا ہے۔ سب پر یہ بات ظاہر ہے، یہ دنیا میں ڈھونڈی جانے والی عزت کا حال ہے، اور جو میرے آقا کے قدموں میں عزت ڈھونڈتا ہے، دنیا اسے کونے سے نکال کر کے اپنے سروں پر کھڑا کرتی ہے، آنکھوں پر بٹھاتی ہے، چاہے وہ 1000 پردوں میں بھی چھپ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی محبت پورے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو عزت ڈھونڈتا ہے، وہ مر بھی جائے تو لوگوں کے دلوں میں نام اپنا نقش کر کے جاتا ہے، زندہ کر کے جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اے نوجوانوں کو یہ مت جواب دینا جب ہم آپ سے کہیں نبی پاک کی غلامی میں آ جاؤ، مولانا ہماری اپنی لائف ہے، ہمیں جینے دو، ابھی تو جوان ہوئے، عیش کرنے دو، ابھی تو فیشن کی دنیا ہے، تھوڑا بہت کر لینے دو، میری زندگی ہے، میں جیسا چاہوں کر لوں۔ میرے عزیز، تجھے کس نے کہا یہ تیری زندگی ہے؟ تو دھوکے میں ہے، یہ تیری زندگی نہیں۔ اگر تیری زندگی اور تیرے اختیار میں ہے تو 100 سال ایکسٹینڈ کر کے بتا دے، تھوڑا اپنی زندگی کو بڑھا کر کے دکھا دے۔ تمہیں پتا ہے تمہارے اختیار میں ایک سانس بھی نہیں، یہ جو زندگی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے رسول کی امانت ہے۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم اس بات کو سمجھ جاؤ، جس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے، عزت اسی طرف آئے گی۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم اگر یہ کہتے ہو ہمارے پاس یہ طاقت نہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں، دولت نہیں، سیاست نہیں، قیادت نہیں، کب تک روتے رہو گے؟ یہ سب چیزیں تمہاری عزت کا باعث نہیں تھی۔ اگر تاریخ نہیں پڑھا ہے تو کھول کر دیکھ لو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غلام صحابہ جن کے پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، پیبند لگے کپڑے پہنتے، پیروں میں چپل بھی نہیں تھے، لیکن مکہ سے مدینے جانے کے وقت یہ اعلان کر کے جا رہے تھے، مکہ بھی فتح کریں گے، ایران بھی فتح کریں گے، روم بھی فتح کریں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کو اگر کسی نے دھول چھٹایا، اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں جس کو قیصر و کسرا کہتے ہیں، قیصر روم کے بادشاہ کو، کسرا ایران کے بادشاہ کو، اس زمانے کے یہ امریکہ اور رشیا کے برابر تھے، سپر پاور طاقتیں، اور ان کو اگر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تو وہ فاقہ کش صحابہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ وہ اس طرح کے بہت بڑے بڑے لشکر لے کر فتح نہیں کیے، بلکہ جس علاقے میں بھی گئے عشق مصطفیٰ کی خوشبو سے انہوں نے فتح کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ غلامی آج چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں عزت ڈھونڈو۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے رسول آپ فرما دیں، قل ان کنتم، اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے، اے رسول آپ فرما دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو رسول کی پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا اللہ نے قرآن میں یہی راستہ بتایا، اور ہمیں بریلی کے امام نے بھی یہی سمجھایا، ابا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے عزیزو، اس نقطے کو آج تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
میں ان بچوں کو کبھی دیکھتا ہوں جن کو آج اس ظالم دنیا نے انٹرنیٹ کے نشے میں ایسا ایڈکٹ بنا دیا ہے کہ یہ دن رات ٹک ٹاک کے مجروں پر مشغول ہیں. ہاں انہیں ایسا لگتا ہے فیس بک ہی پوری دنیا ہے, انسٹاگرام ہی پوری دنیا ہے. نہیں, جب ان ہاتھوں میں تاش کے پتے آئے, شراب کی بوتلیں آئی اور بے حیائی کے نغمے تمہاری زبانوں پر آئے اور تمہاری آنکھیں اخلاق سوز حرکتیں دیکھنے پر مجبور ہو گئی, تبھی تو یہ تمام رحمتیں ہم سے دور ہوئی, تبھی تو یہ مدد اور نصرت اللہ کی ہم سے دور ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ اگر 313 بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارتا. آج بھی تم اگر ارے کیا کر رہے ہو تحصیل بھائی؟ محفل رسول کا ادب آپ نہیں جانتے. میں نے سب سے پہلے تو نوٹ لانے سے بھی منع کیا. کیا اتنی پیاس لگی آپ کو؟ شہید اعظم کانفرنس منا رہے ہیں, حسین اعظم کی پیاس کا ذکر کرتے ہو. 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے اس امام کے مقتدی کیا ایک بوتل پانی پر سارا مجمع خیرہ کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر سچے حسینی ہو تو ہر چیز کو برداشت کرنے کی طاقت ڈالو, ہر چیز کو برداشت کرنے کی اپنے اندر عادت بھی ڈالو. اور یہ زمانہ انہی چیلنجز کا ہے. کیا تم ایک بوتل پانی پر بکنے والے لوگ ہو؟ نہیں, اور نہ ہی ادھر ادھر کی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو میں غزوہ خندق کی ایک بات میں بتا دوں. صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی 1 مہینے سے خندق کھود رہے تھے اللہ, اور پیٹ پر پتھر باندھنے کے واقعات وہاں پیش آئے. بھوک کی شدت تھی, صحابہ میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. 2 کھجوریں اگر مل جائیں تو 10 لوگ مل کر کے اس کو چوس لیتے. اللہ, فاقے کا عالم یہ تھا. لیکن جو کفار و مشرکین مقابلے میں آئے تھے ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ, اور ان کے ہاں اونٹ اور بڑے بڑے جانور ذبح کر کے پکائے جا رہے تھے, اور ان کے کھانے کی خوشبو ادھر بھی آ رہی تھی صحابہ کو بھی. توجہ, ادھر کفار و مشرکین کے ہاں روٹیاں بھی بن رہی ہیں, بوٹیاں بھی بن رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں صحابہ فاقہ کر رہے ہیں. لیکن تاریخ کا ایک ورق بھی مجھے دکھا دو, ایک لائن دکھا دو کہ رات کا وقت ہوا, میرے آقا سو رہے ہو اور ایک صحابی بھی کھڑا ہو کر کے یہ سوچتا ہو کہ جاؤں ان کے خیمے میں سے 2 بوٹیاں لے آؤں یا 1 روٹی لے آؤں. ایک صحابی بھی کبھی ان کے کھانے کی خوشبو کی طرف نہیں متاثر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا بھی, شاید تمہیں بھوک پریشان کر رہی ہو, فاقہ پریشان کر رہا ہو, اور ادھر ان خیموں میں کھانے پینے کی خوشبوئیں آ رہی. صحابہ نے برجستہ کیا عرض کیا, یا رسول اللہ, اگر کھانے اور پینے روٹی اور بوٹی کے لیے ہم آئے ہوتے تو اس خیمے میں نہیں ہوتے, اس خیمے میں ہوتے. میرے آقا, یہاں تو ہم اپنی گردنیں آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے آئے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. یہ میرے آقا کے غلاموں کو دنیا کبھی خرید نہ سکی, اس لیے 12,000 کا لشکر لے کر کے بھی صلاح الدین ایوبی 4 لاکھ کی فوج سے اکیلا لڑ رہا تھا. اللہ اکبر. اس چھوٹی سی فوج کو 4 لاکھ صلیبی توڑ نہیں پائے. یہ تاریخ میری اپنی لکھی ہوئی نہیں, انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ, انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے. صلاح الدین ایوبی ایک ایسا جرنیل تھا جس کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا ایک بار, اور میدان میں جب وہ اترا تو اس کے مقابل میں سارا یورپ اتر آیا تھا 4 لاکھ کی فوج لے کر. صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوج سے یہ پوچھا بھی تھا کہ ہم ان کے مقابلے میں اترے یا نہیں اترے. تعداد ہماری صرف 12,000 ہے, 4 لاکھ کی فوج لے کر آئے. جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی وہ عاشقان مصطفیٰ کی فوج تھی. عرض کیا اپنے سپہ سالار سے, صلاح الدین ایوبی سے, اے ہمارے سپہ سالار, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب غزوات میں جاتے تھے تو کیا تعداد دیکھتے تھے؟ اگر وہ تعداد دیکھتے تھے تو ہم بھی دیکھیں گے. اگر رسول اللہ کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تو آج ہم بھی تعداد نہیں دیکھیں گے. اس لیے کہ ہمارا یقین ہے تعداد مدد نہیں کرتی, اللہ مدد کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر
फिर सलाउद्दीन अय्यूबी ने तारीख में ये बात रकम कर दी, वो 12,000 की फौज ने 4 लाख के छितड़े उड़ा दिए थे। ये तारीख भी अंग्रेजों ने लिखी है, अंग्रेजों ने लिखी है कि 12,000 का मुकाबला नहीं कर सकी वो कौम। अब मैं आपको ये बात बता दूं, इस जालिम दुनिया को पता है कि तुम्हारे साथ हाथ बहाथ मुकाबला मुश्किल है, इसलिए तुम्हारे साथ दूसरी जंग लड़ी जाती है। वो जंग यही नशा वाली जंग है जो तुम्हारे घरों तक पहुंचा दी जाती है, तुम्हें नशा का एडिक्ट बना दिया जाता है, इंटरनेट की दुनिया में तुम्हें आवारा बना दिया जाए। कोई एक भी जवान ऐसा ना हो जो मेरे आका के अखलाक के लिए गैरतमंद हो, ये दुनिया ही चाहती। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। यूरोप यही कहता है, अंग्रेज यही कहते, यहूदी यही कहते। इनका हाल तो देखो, इनको काटो मारो कत्ल करो फिर भी ये जमा होते। कई मर्तबा इनको तोड़ा गया, तबाह किया गया, लेकिन इनकी अजानें अभी भी बंद नहीं हुई, इनके मिंबरों से खुतबे अभी भी खत्म नहीं हुए। जेनोसाइड एक वर्ड है, जेनोसाइड, जाकर चेक करके देख लेना। दुनिया में कई कौमों के साथ ये जेनोसाइड किया गया। जेनोसाइड का मतलब नस्ल कुशी, पूरी की पूरी कौम को खत्म कर देना। अफ्रीका में कई ऐसे धर्म खत्म हो गए, उनकी पूरी कौम को खत्म किया गया। और इस्लाम और मुसलमानों की जेनोसाइड के लिए, नस्ल के लिए एक बार नहीं 70 बार से ज्यादा कोशिशें हुई। इस पूरे दौर में बड़ी बड़ी ताकतें लग करके कोशिश की हैं। बगदाद को तोड़ करके रख दिया था, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिया। दरिया दजला का पानी पूरा हमारे खून से लाल हो गया था। तराबलस को, मराकश को, लीबिया को, मिस्र को, तुनिस को और करतबा को, आप देखें स्पेन की वादियों को मुसलमानों के खून से नहलाया गया है। बेहिसाब कत्ल हुए, लेकिन आज क्या अजानें बंद हो गई? क्या आज मस्जिदों से मेरे आका की बातें बंद हो गई? नहीं हुई। एक यहूदी आलिम ये कहता है, वो रिसर्च कर करके बूढ़ा हो गया है, वो कहता है मैं इन्हीं बातों पर रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। बार बार इन्हें कत्ल किया गया, बार बार इन्हें तोड़ा गया, बार बार इनको जिला वतन किया गया, इनसे हुकूमतें छीनी गई, फिर ये जमा क्यों होते हैं? वो यहूदी आलिम कहता है जबकि देखा जाए तो इनका कोई ढंग का लीडर भी नहीं जो इन्हें जमा करे, इनके पास कोई क़ियादत भी नहीं होती जो सब इनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करे, इनके पास कम्युनिटी लीडर नहीं है, फिर कौन इन्हें जमा करता है? ये मैं नहीं कहता, एक यहूदी आलिम कहता है। हर बार ये टूटते हैं और इन्हें अगर कोई चीज जमा करती है तो नाम है मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है पाक ऐसा है कि इनके बुझे हुए दिलों में भी इश्क के शोले भड़का देता। हाय हाय हाय, क्या बात है, इनके दिलों को रोशन कर देता वाह, वाह, वाह। है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों की जुबान सुनो, क्या कहते हैं वो? ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वो दुनिया यही कहती है कि रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकालो। हमें पता है, ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? मौत से डर लगता है? कुछ लोगों को डर लगता हो तो वो डर आज निकाल दो। दुनिया में सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा डर मौत का है। उसके बाद क्या होना है? मौत उसके लिए डरावना ख्वाब होगा जो ये सोचता हो कि मुझे मरने के बाद जलना ही है, जलना ही है, अंधेरा ही है, अंधेरा ही है। वो मोमिन भला क्यों डरे मौत से, जिसका अकीदा ये हो इधर आंखें बंद होगी, उधर चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, हुजूर कायदे मिल्लत। मेरे अजीजों, क्या अपने जाते हुए जनाजों को देखते नहीं? मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, मौत तो आनी है, जवानी में आए कि बुढ़ापे में आए, लेकिन तैयार तुम्हें हमेशा रहना है, तैयार रहना है। लेकिन गुनाहों पर जो आई हुई मौत है उस पर अफसोस होगा।
बेहयाइयों पर आई हुई मौत पर अफसोस होगा, कोरोना पे आई हुई मौत का कौन अफसोस करे? क्यों अफसोस करते हो? अगर किसी का जनाजा 4 लोगों में गया है, कुछ लोगों को हमने सुना अरे बड़ी बुरी मौत हुई, नहीं मेरे अजीज, बुरी मौत उसको नहीं कहते, बुरी मौत कुफ्र पर हो वो बुरी मौत है। ईमान पर अगर मर गया और 70 टुकड़े भी हो गए तो वो बुरी मौत नहीं, वो शहादत की मौत है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, शहादत है, उसे बुरी मौत नहीं कहा क्या जाएगा। बात। जनाजे जाते हुए देखते हैं और सज सवर करके जाते हैं। सुन्नियों के जनाजे तो अल्हम्दुलिल्लाह और सजते हैं, क्या बात है। दूसरों के तो पता नहीं, छुप के चले जाते हैं। लेकिन हमारा हाल ये अल्हम्दुलिल्लाह, साफ सुथरा कफन पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं मैयत को, सुरमा भी लगाते हैं, जनाजा तैयार होने के बाद फूल भी डालते हैं। कभी सोचा ये क्यों? मरे हुए आदमी को अत्तर की जरूरत क्या है? वो तो कब्र में जा रहा है, आंखें बंद हो गई, अब सुरमा लगाने की क्या जरूरत है? और ये सफेद कपड़े में ढांकने की क्या जरूरत है? बुजुर्गों से पूछो तो ये बताएंगे मेरे अजीज, ये जा तो रहा है कब्र में, लेकिन आज ये मेरे मुस्तफा के दीदार के लिए जा, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। इसलिए सजाया जा रहा है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात, इसलिए डर और खौफ निकालो। ईमान वाला बंदा मौत से इसलिए नहीं डरता, इसीलिए ये दुनिया जानती है कि इसके अंदर खौफ मौत का नहीं, इनके अंदर से इश्क मुस्तफा निकाल लो, फिर ये हर चीज से डरने लगेगा, हर चीज से खौफ। बुज़दिल कब बनता है बंदा? जब मेरे आका के कदमों से दूर होता है। हुजूर के कदमों में रहने वाला बुज़दिल कभी नहीं होता। आशिक रसूल हमेशा वो बतले जलील कहलाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार। बहरहाल आज फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि तुम अगर ये सोचते हो कि कुछ लोगों की नौकरी का सवाल है, कुछ लोगों के लिए लड़की का सवाल है, कुछ लोगों के लिए अपने बिजनेस का सवाल है, अगर पूरा हुजूर की सुन्नतों पर आ जाऊं, नौकरी का मसला आ जाएगा, कुछ लड़कियों का मसला आ जाएगा, किसी के तिजारत का मसला आ जाएगा। ये सब शैतानी वसवसे हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, सब शैतानी वसवसे हैं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है और मेरे मुस्तफा के कदमों से रिस्क क्यों नहीं मिलेगा? हमारा तो ये कहना है, आला हज़रत ने क्या सबक दिया, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। क्या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात जब है। तुम्हें पता है जो कुछ भी मिलना है मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिलना है, तो फिर ये शैतान जो तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है हुजूर की आदतों पर, हुजूर के अखलाक पर आऊंगा, दुनिया छूट जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, लड़कियां छोड़ जाएंगी। अगर ऐसी छोड़ती हैं तो छोड़ जाए, जो तुम्हें नबी पाक की सुन्नतों पर कबूल कर ले, इंशाअल्लाह वो यहाँ पर भी साथ होंगे, आखिरत में भी साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ, एक बात याद रख ले और ये बात भी समझ करके चलो, आज के बाद कल परसों जब भी मौत तो आनी है, मलकुल मौत रोजाना तुम्हारे इंतजार में है। जब वक्त खत्म होगा रूह खींच लेंगे और तुम्हारी आंखें बंद इतने बेयार और मददगार हो जाओगे कि दुनिया तुम्हें उठाकर कब्र की तारीक वादी में छोड़ आएगी। तुम्हें पता है, उस ऐसी तारीकी में छोड़ आएगी जहां तुम पुकार नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते। एक हदीस मैंने पढ़ा, हुजूर फरमाते हैं मैयत को सबसे ज्यादा शौक या हसरत किस बात की होती है जानते हैं? कब्र में जाने के बाद मैयत ये चाहता है, आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे, मरा हुआ आदमी कब्र में जाने के बाद सबसे ज्यादा इस बात की ख्वाहिश रखता है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त और अहबाब थोड़ी देर मेरी कब्र के पास बैठे रहें। वो जब तक बैठे रहेंगे उसे दिल का करार होगा, उन्स होगा, ये हदीस में है। लेकिन बैठता कौन है? सब छोड़कर चले आते हैं। करीबी दोस्त भी मिट्टी डालकर जल्दी से कब्रिस्तान से वापस घर आता है। अपने बाप का जनाजा ले जाने वाला बेटा भी तख्तियां बंद करके कब्र की मिट्टी डाल करके जब घर आता है, मैयत पुकार रहा होता, उसे सब चीजों की खबर है। लोगों के चलने के चप्पल की आवाज तक मुर्दा सुनता है, लेकिन इतनी तारीक कब्र, हाथ उठाओ तो हाथ नजर ना आए। और
ऐसे दफन करके आते हो, न एक तकिया देते हैं, न एक बोरिया, न एक चादर, और न कब्र में कोई रोशनदान सुराख, कुछ नहीं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? तवज्जो, जब तुम अपने दोस्तों को भी जाते हुए देखोगे, तुम्हें दफन करने वाला बेटा भी जाते हुए देखोगे, भाई भी जाते हुए तुम देख रहे होंगे, कब्र के अंदर सब छोड़कर चले जाएंगे। अंधेरा 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 कब्र का। उस अंधेरी रात में अगर कोई रोशनी लेकर आता है तो ताजदार मदीना की जात, सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। क्या बात है। उस कब्र की अंधेरी रात में वो रोशनी ले आएंगे। और मेरे अजीजों, जब तुम्हें पता है कि कब्र में हमें उनकी जरूरत है, हश्र में उनकी जरूरत है, तो फिर सुन लो आला हजरत क्या कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हमने दुनियादारों को भी देखा है, उनके घरों पर इज्जत ढूंढने वाले, उनकी जूतियों पर इज्जत ढूंढने वाले, उन पर अपनी जिंदगियां निछावर करने वाले, बुढ़ापे में तुम्हें भी तन्हा छोड़ दिया जाता है। पार्टियों से निकाल करके तो ऐसा उन्हें बेवा बना दिया गया है कि कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला ये बात यकीन के साथ याद रखे, मेरे आका ने कभी अपने गुलामों को तन्हा नहीं छोड़ा, कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक वाकया लिखते, मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था, और जैसे ही वो इंतकाल कर गया उसका चेहरा जानवर की तरह बन गया। एक ही बेटा था, सुनो, एक ही बेटा था, और बाप का चेहरा जानवर की तरह हो गया। कुछ गुनाह किया होगा, कुछ गलतियां किया होगा। अब बेटे ने जब बाप का चेहरा बिगड़ता हुआ देखा, फौरन दरवाजा घर का बंद कर दिया, और देख करके मैयत को डर लगने लगा कि अब लोगों को दीदार कराऊं कि नहीं कराऊं, जनाजा उठाऊंगा, लोग तो देखने आएंगे, दफन कैसे करूं। घर की औरतों को सबको समझा बुझाकर बिठा दिया और कहा, अब मैं ऐलान नहीं करूंगा, बाहर दफन करने नहीं ले जाऊंगा, घर के अंदर ही गड्ढा खोद कर अपने बाप को यहीं दफन कर देता हूं, ताकि किसी को पता ही ना चले, वरना बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। नौजवान लड़का घर में रोता हुआ बैठा है, मेरे बाप के साथ क्या हो गया? वो रो रहा था। अचानक उसके घर के दरवाजे से खुलने की आवाज आई। अचानक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए। वो आते ही उनके चेहरे पर चादर थी, वो सीधे मैयत के पास गए, चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ रखा, फिर चादर बंद कर दी। फिर इस नौजवान लड़के के पास आए। वो बुजुर्ग कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? नौजवान लड़का कहता है, मैं तो आपको देखा नहीं, कहां से आप अंदर आ गए, मैंने दरवाजे सब बंद कर दिए थे, लेकिन अब आप आ गए हैं तो क्या देखते नहीं मेरे बाप का चेहरा बदल गया है। मैं अपने बाप को लोगों के सामने कैसे जनाजा उठाऊं? आप नहीं देखते चेहरा जानवर की तरह हुआ है। वाह हुए बुजुर्ग ने कहा, बेटा जाके देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ हुआ नहीं। वो नौजवान खड़ा हुआ और गया अपने बाप की लाश के पास, चादर हटाई तो देखता है अपने बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, सुभान अल्लाह, खूबसूरत है। वो खुशी के मारे रोते हुए सज्जा शुक्र में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फिर खड़ा हुआ। उसने रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, मौला तूने फरिश्ता भेज दिया मेरे घर पर, ये कौन बुजुर्ग है जो मेरे बाप के चेहरे को उन्होंने ठीक कर दिया। उस वक्त तक वो बुजुर्ग घर से निकलने को थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, ये दौड़ता हुआ आया और उनका दामन पकड़ लिया, कहा आप कौन हैं? अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह की तरफ से आए हुए, आपने मेरे बाप के चेहरे को ठीक कर दिया, ये एहसान क्यों किया? वो आए हुए बुजुर्ग पलटते हैं और कहते हैं, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाह अकबर। जैसे ही वो नौजवान सुना, कदमों में गिरा, कहा आका मेरे घर आपकी आमद हुई और इस हाल में मुझे बताएं मेरे बाप के साथ क्या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तेरे बाप का कोई एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला नाराज था, रब्बे कदीर गजबनाक था। जैसे ही तेरे बाप का इंतकाल हुआ, मौला ने अपने गजब का इजहार उसके चेहरे पर किया, तेरे बाप का चेहरा बदल गया। लेकिन ऐ नौजवान, तेरे बाप की एक अच्छाई थी, एक अच्छाई ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था
जब तक 100 मरतबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं रोजाना इसकी आदत थी। गुनाह होंगे लेकिन अपने नबी को याद किए बगैर सोता नहीं था। जो फरिश्ता इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, आज वो फरिश्ता आकर कहने लगा गजब हो गया रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद पढ़ने वाला वो बंदा आज मर गया लेकिन मौला के जलाल का शिकार हुआ, अल्लाह के गजब का शिकार हुआ है। अगर आका आप उस पर रहम न करेंगे तो दुनिया बाद में ताना देगी, दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा ही सलामत नहीं रहा तो किसका सलामत रहेगा। मेरे आका फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठ करके आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा तो बिगड़ा हुआ था, मैंने हाथ रखा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की, मौला ये वो चेहरा है जो मुझे याद किया करता था। रब्बे कदीर ने फरमाया महबूब अपना हाथ उठाओ, हम तुम्हारी सिफारिश पर तुम्हारे गुलाम के चेहरे को चांद सी शबाहत देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरती अता करेंगे। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को मेरे आका की सिफारिश पर फिर से वो हुस्न जमाल अता किया। मैं ये बात जब पढ़ता हूँ आंखें भीग जाती हैं, इसीलिए फिर बरेली के इमाम की बात याद आती है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ मुसलमानों में आज फिर से तुम्हें करीब ला करके कहता हूँ इधर उधर मत देखो। अगर तुम्हारे दर्दों को कोई आज समझने वाला है, तुम्हारे गमों को और तुम्हारे गम की दास्तान को कोई अगर सुनने वाला है तो मेरे आका की जात है, वो ताजदार मदीना की जात है। दुनिया तुम्हारे गमों पर हाथ नहीं रखती, ये तुम्हारा मजाक उड़ाती है। तुम जिसके पास जाकर के शिकायत करते हो हमारा ये हाल हो गया, हमारा वो हाल हो गया, हमने देखा है कि ये दुनियादारों ने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया है। तुम्हारे हाथ में 2 चॉकलेट दे देंगे, तुम्हारे हाथ में कोई चीज थमा करके भेज देंगे, लेकिन तुम्हारे दर्दों का मुदावा करने वाला कोई नहीं। अगर कोई है सच्ची मोहब्बत तुमसे करने वाला, वो आमिना का लाल है, वो मेरे मुस्तफा की जात है। इसीलिए मैं कहता हूं जो कब्र में जाकर के भी मेरे आका हम गुनहगारों को याद करते रहे, मेराज के सफर में पहुंचकर अपने रब करीम की बारगाह में हम गुनहगारों की सिफारिश करते रहे, क्या तुम्हें यह ज़ेब नहीं देता कि आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दो, अपने शब रोज वक्फ कर दो। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक बात जरूर कहूंगा, मैं तुम्हारे जज्बात को बेदार करने के लिए आया हूं। अगर किसी के अंदर बुज़दिली है, खौफ है तो निकालो। अब बकिया जिंदगी की हर सांस हम नबी पाक की मोहब्बत के लिए वक्फ करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हुजूर के लिए जिएंगे, हुजूर के लिए मरेंगे। बरेली से करीब रहते हो बल्कि तुम्हारा जिला बरेली है, सुभान अल्लाह, तुम्हारा जिला बरेली है और तुम्हारी किस्मत पर पूरी दुनिया रश करती है। हम तो बहुत दूर हिंदुस्तान के साउथ से ताल्लुक रखते हैं, हमारा आबाई वतन कर्नाटका है, लेकिन मिस्र में जाएं, मदीने में जाएं, लोग हमको बरेली से पहचानते हैं। क्या बात है, वाह वाह। क्यों? अब तुम्हारा हक ज्यादा है। बरेली के रहने वाले, बरेली के इमाम के करीब रहने वाले, इस नसीहत को याद रखो, उस बरेली के इमाम ने अपनी मोहब्बत तुम्हारे सीनों में नहीं डाली, पूरी जिंदगी भर कलम चलाया है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में है। नारे तकबीर, इसीलिए नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नबी रे आला हजरत, सुभान। इसीलिए पूरी दुनिया आज ये बरमला कहती है डाल दी कल्ब में असमते मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस बरेली के इमाम की ये नसीहत याद रखो। क्या नसीहत? उन्होंने ये सबक दिया था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। और जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे, जिस दिन तुम खड़े हो गए, ये दुनिया फिर 100 साल के लिए सोने पर मजबूर हो ही जाएगी। आज देख लेना, ये हमारी कौम बेदार हुई है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अब ये बच्चे खामोश नहीं रहेंगे। जवाब देने का तरीका सिर्फ तलवार चाकू छुरी नहीं है, हम इन चीजों का इस्तेमाल करते नहीं। हमारे पास जो ताकत है वो इश्क़ मुस्तफ़ा की ताकत।